Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing the concept of linear equation in two variables. I will provide you all the basic concepts regarding this topic. So watch the video carefully and if you want then can make your own notes. जो भी important लगे वो अपने notes में लिख लिया करो. So आपकी notes भी तैयार हो जाएंगी. So let's get started. First we see the definition of linear equation in two variables. Linear equation in two variables. Okay, so friends, इसकी definition है an equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in two variable. Linear equation in two variable. Okay, now first we have to know the meaning of linear equation. What is meant by linear equation? Here linear equation simply means if we have any equation that is suppose ax plus by is equal to c. This is the simple general equation. If we want to say this is a linear equation, then the condition is the degree of the variable. Here variables are x and y are the variables. The condition is the degree of the variables should be 1. Should be 1. What? Degree should be 1. It is compulsory. लेस देन चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं. यहाँ पे क्या लिखा है, अगर an equation which contains two variables and the degree of each term containing the variable, that is the degree of the term containing the variable. अगर कोई term equation में अगर कोई term वेरिएबल कंटेन करता है तो उसकी डिग्री नेसेसरीली 1 चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. अगर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे c बोला तो एक कांस्टेंट है. यहाँ पे a, b एंड c आर रियल नंबर्स. दीज आर नॉट वेरिएबल्स, रियल नंबर्स है. तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री 0 होगी, 0 चलेगा लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं चलेगा. जैसे यहाँ पे x की डिग्री क्या है 1, यहाँ पे y की डिग्री क्या है 1. सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशंस मीन्स सिंपली मीन्स the degree of variable should be 1, not more than 1. Okay, this is solved. Now it is simple to understand what is linear equation in two variables. कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स कंटेन करता है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं. जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हो गया जनरल इक्वेशन, दैट इज ax plus by is equal to c. Here x and y are variables and a, b, c are real numbers. And वेरिएबल्स की डेफिनेशंस देखी जाए, वैसे आपको ये पता होगा फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखी जाए तो वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है. वेरिएबल मीन्स चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. अगर हम ABC रियल नंबर से बोले तो दीज आर फिक्स्ड. इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी रही होंगी. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू सपोज 7 या फिर और कुछ टू भी √2, कुछ भी. क्योंकि रियल नंबर्स हमें पता है कि रियल नंबर्स का सेट जो होता है वो रैशनल डिनोटेड बाय q एंड
इरेशनल्स क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन होता है रैशनल्स प्लस इरेशनल्स। ये प्लस नहीं होता, यानी कि वो सेट रैशनल नंबर्स भी कंटेन होते हैं और करते हैं और इरेशनल नंबर्स भी कंटेन करते हैं, उसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ here are some examples of linear equation in two variables. For examples, first the general equation, then second we have suppose 3x plus 5y equals to cancel root 2, anything. These are linear equations in two variables. Now we write the question. Now the question is given, is the following equations are linear equation in two variables? Now we have to verify it. Here it is given 9x square plus 17y equals to 13. क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स? यहाँ पे वेरिएबल्स तो है x एंड y, दो है, लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशंस मीन्स व्हाट? we have degree should be 1, but here x has degree 2, मतलब this is degree 1 more than 1, so it is not linear equation, not linear equation in two variables. Why? Reason, the degree is more than 1, the equation is not linear, so it is not linear equation in two variables. Now the second equation, root 2x minus root 2y root 5y is equals to 17. Is this a linear equation? Yes, because x and y are linear equations. X and y are two variables with degree 1, and root 2, root 5 and 17 are all real numbers. But if the question is of the form root 2x minus root 5 and y मल्टीप्लिकेशन में रूट के अंदर होगा इक्वल्स टू 17, ऐसा होता तो यह x रूट के बाहर है लेकिन ये y रूट के अंदर है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन हो जाता? क्या हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह पाते? Then answer is no. Why? Why it is not linear in two variables? Because the definition we had seen, if the degree of each term containing variable is 1, अगर कोई इक्वेशन वेरिएबल कंटेन करता है तो उसकी डिग्री नेसेसरीली 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे y की डिग्री हो जाती है 1/2 which is not equals to 1, y to the power 1. So this is not a linear equation in two variables. Here 0 x मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, प्लस 16 y इज इक्वल्स टू y, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो यस, वी कैन से इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वाई? यहाँ आप बोलेंगे यहाँ पे तो x है ही नहीं, x है लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है. अगर ये इक्वेशन 0x प्लस 0y ऐसा होता तो शायद हम इसे नहीं कह पाते कि ये लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन ही नहीं होता, क्योंकि 0 इज इक्वल्स टू 4, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. क्या हमने कभी मैथ्स में ऐसा पढ़ा है कि 0 4 के इक्वल हो गया या फिर 0 2 के इक्वल हो गया तो हमारा पूरा मैथ्स ही चेंज हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं होता, ऐसा इक्वेशन नहीं होता. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट लीनियर. तो दूर की बात है, ये इक्वेशन ही नहीं है. ओके, ये इक्वेशन हो जाएगा. सो वी हियर द नेक्स्ट कंडीशन इज, वी हैव गिवन द नेक्स्ट कंडीशन, that is the variables, if the equation is like ax plus by is equals to c, then the variables a, b and c are real. This is given, but the real numbers, but the variables that are variables nahi, coefficients a and b should
not 0 at same time, मतलब एक ही साथ दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे दिया है हमको, यहाँ पे हमने लिया था ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ, अगर ये ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता तो शायद हम कह सकते थे, लेकिन उसका भी कोई मीनिंग ही नहीं रहता। सो दिस इज़ नॉट ट्रू हियर बी। सो हमें यहाँ पे कंडीशन मिलती है कि ए एंड बी शुड नॉट ज़ीरो एट द सेम टाइम। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ we see the definition of simultaneous linear equation. What is simultaneous linear equation? Linear means you know all, and simultaneous means the definition comes that when we consider two equations, two linear equations, I will write down here. When we consider two linear equation at the same time, linear equations in two variables, in two variables at the same time, then they are called simultaneous equations. Simultaneous equations, and some authors also called it as system of simultaneous equation. Both are meaning is same. Now, how to simultaneous equations, or the solution of the simultaneous equation. But firstly the question comes, to solve to solve simultaneous equations means what? Means इसका हम solution निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, exactly क्या करते हैं, उसका meaning क्या होता है? I write down the question, that is to solve simultaneous equations mean what? To solve simultaneous equation means what? It simply means to find the values of the variables. जैसे सपोज यहाँ पे दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c, एंड सपोज सेकंड दिया है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। मैंने यहाँ पे c को c1 कर दिया। a1 a2 b1 b2 and c1 c2 are different fixed numbers, okay, and x and y are the variables. So simultaneous equation का solution निकालना मतलब x and y की values find out करना होता है for the different values of a1 b1 c1 and a2 b2 c2। मतलब a2 जो ये कोएफिशिएंट सारे दिए हैं हमें 6, उसकी वैल्यू अगर हमने चेंज कर दी तो उसके रिगार्डिंग x एंड y की हमें क्या वैल्यू मिलती है, उसको सॉल्यूशन ऑफ द simultaneous equation बोलते हैं। Now to solve these simultaneous equations, we have given three methods, out of which you all learned previous year, that is elimination of one variable, or can say eliminating one variable, elimination of one variable, and second and third we will study this year, graphical method, and third is by Cramer's rule. Okay, now एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल, ये मेथड तो आपने पिछले साल पढ़ी है, लेकिन उसके फिर भी मैं एक दो एग्जांपल्स ले लेती हूँ। वन वेरिएबल, फर्स्ट मेथड, let's see first example, x plus 7y is equals to 10 and 3x minus 2y is equals to 7. This is the system of two variables. Now let consider this is equation number 1 and equation number 2.
वी जैसे कि मेथड है एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल्स, दैट इज वी हैव गिवन द टू वेरिएबल्स x एंड y एंड हियर वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल्स आइदर x और y। आप कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हो, x भी कर सकते हो, y भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल दिया है एक प्लस और एक माइनस में, तो हमें माइनस की कोई झंझट नहीं रहेगी, इसलिए हम y को एलिमिनेट करते हैं। इसके लिए हमें उसके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 के y को इक्वेशन 1 के y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना मेरे बोलने में, यहाँ पे सिंपल है, हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इक्वल चाहिए, इसलिए हमें इसको इक्वल बनाने के लिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बन जाएगा, ऐसा करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इम्प्लाइज यहाँ पे 2x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 10 20, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 7 3 21x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 7 7 14 9। ओके, नाउ यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, टू इक्वेशंस की एडिशन कर देंगे, तो y गेट्स कैंसिल, 14y माइनस 14y गेट्स कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस है तो 21 प्लस 2 23x इज इक्वल्स टू 69। ना x यहाँ पे रह जाएगा और 69 को 23 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। ओके, ये हमें मिल गई x की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 और 2, आप किसी में भी डाल सकते हो। इक्वेशन 1 दिया है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू हम रख रहे हैं 3, तो 3 प्लस 7y, y हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 10, ये मिल जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 दैट इज 7, तो ये बन जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 7, सो y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू मिली थी 3 एंड y की वैल्यू मिली है 1। ये है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दैट इज कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू 3 1, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Solution of the given system of equation. Okay, now we will see the second example. Now the second example, 1 by 3 x plus y is equals to 10 by 3, and the second related equation number 1, and second equation is 2x plus 1 by 4y equals to 11 by 4. This is पहला थोड़ा सा ये देखने को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म, जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and converting equation 2 into simple form, we just multiply it by 4, that it will becomes, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, रिलेटेड इक्वेशन नंबर 3, एंड इक्वेशन 2 बन जाएगा, इक्वेशन 2 हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 इट्स 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, लेकिन यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में पिछले एग्जाम्पल में था एक प्लस और माइनस, यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा लास्ट में।
तो कोई भी वेरिएबल चूज़ करो, आइदर एक्स करो आइदर वाई करो, कोई भी, नथिंग मीन्स बोथ विल बी सेम। हम यहाँ पे y एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके कोएफिशिएंट्स सेम चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 3 को हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप सोचेंगे यहाँ पे किया, पिछले एग्जाम्पल में किया वेरिएबल्स को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी कर सकती है। यहाँ पे 1 है और हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही इक्वेशन रहता, नथिंग विल चेंज। सो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इम्प्लाइज, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स टू 10, एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इम्प्लाइज 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। और दोनों साइन प्लस है तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही हम दो इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकेंड वाला इक्वेशन रहता है उसके साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऊपर के इक्वेशन में गिवन होता है अगर ये -3y, तो हम ऐसा करते ही नहीं, लेकिन अगर होता तो और हम माइनस साइन लेते मल्टीप्लिकेशन के लिए तो माइनस का प्लस हो जाता। ओके, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, नाउ प्लस 3y एंड -3y गेट्स कैंसल। ये साइन कंसिडर नहीं करनी, जो हमें नई साइन दी है वो कंसिडर करनी है। यहाँ पे है -24 प्लस 1, that is -23x is equals to -23. Okay, now x is equals to -23 divided by -23, तो ये बन जाएगा 1, x is equals to 1. Now put this x is equal to, put this value of x is equals to 1 इन इक्वेशन। आप कौन से भी इक्वेशन में रख सकते हो, या फिर या तो 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में रख सकते हो, या 4 में रख सकते हो। वैल्यू आपको चारों इक्वेशन से सेम ही मिलेगी y की, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी वी पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। सो पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारा गिवन, x इज इक्वल्स टू 2y, x की वैल्यू हमें 1 मिली है, तो x प्लस 3y is equals to 10, that is 3y is equals to 10 minus 1 मिल जाएगा 9, तो y is equals to 9 by 3 is equals to 3, y is equals to 3 मिल गया। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x is equals to 1 and y is equals to 3, that is xy is equals to 1, 3, which is the required solution of the given simultaneous equation. I hope this is clear to you all. Now in the next video we will discuss the next method, that is graphical method, and you must all thank you for watching. and अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो और ऐसे ही वीडियोस आगे देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियोस जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस डालती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।